good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you. Well, dear friends, thank you so much for tuning in today. We love you for tuning in, for listening to us today, right here on our Motivational Mondays on Bob's Radio. But today is a very, very special day. We're having our first Hindi language broadcast of Bob's Radio, and we are over the moon. For those of you who have tuned in for the first time, Bob's Radio broadcasts every Monday, Wednesday, and Thursday of the week. And we broadcast on Monday at 11 p.m. India time. We broadcast on Wednesday at 9:37 India, and on Thursday again we broadcast at 11:07 p.m. India. I know you've seen our programs and you've listened to us. If you'd love to listen to more of us, please do visit our Facebook pages or YouTube by simply typing in Bob's Radio 21.37 FM, and you'll find all our previous segments and stories there. There are some wonderful gems there, some amazing stories of how God has been working in the lives of people. Bob's Radio is an online Christian radio, and we love to talk so many things connected with Scripture. Well, today with me on our Hindi language broadcast, let me introduce our RJs in our virtual studio. Today I have with me RJ Singh from India, RJ Anuj from UAE, RJ Nimmi also from UAE. Let me first go to India. Singh साहब कैसे हो? मैं ठीक हूँ. बॉब आप कैसे हैं? Doing good, doing good. Singh साहब, tell me what is happening in India. Oh, it's too hot here. बहुत ही गर्मी है यहाँ पर. अच्छा. और मैं आपको बता दूं, हमारे शहर में लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है. और सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि ये गर्मी का सीजन है, इसलिए यहाँ पर आईपीएल चल रहा है अभी. और आईपीएल अभी इंडिया में बहुत ही अच्छे से चल रहा है. आईपीएल तो बहुत सारा फैंस होगा, क्रिकेट फैंस. यू नो, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी ऑफ यू लिसनिंग आउट देयर हु आर बिग आईपीएल फैंस. लेकिन ये आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, कौन सा टीम है आपका? फेवरेट टीम कौन सा है? मेरा फेवरेट टीम सीएसके, चेन्नई सुपर सीएसके. किंग्स. चेन्नई सुपर किंग्स. ओके, ठीक है. और भाई क्यों? क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर एमएस धोनी उस टीम में है, इसलिए वो टीम मेरी फेवरेट टीम है. अच्छा. All right. So to all the MS Dhoni fans, I'm sure you would have loved that, and also to the CSK fans. Well, good. We are going to talk more. We're going to come back to you, Singh Saab. I also have RJ Anuj from UAE. Anuj bhai, tell me what is happening in UAE. Hi Bob, and namaste for सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार. यूएई में जश्न का एक माहौल है, आप जानते होंगे. अभी आज ईद का शुरुआत हो चुका है. Exactly. All over the world, right? सही बात है, बिल्कुल सही बात है. स्पेशली इन्होंने एक महीने तक इनका जो फास्टिंग होता है, उसके बाद इन्होंने जो फास्टिंग ओपन किया है, उसका एक बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है. आप कहीं भी जाओगे, किसी भी पार्क में जाओगे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, आपको फैमिलीज वहाँ पे मिल के सब बैठ के एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे. Absolutely. और बहुत दिन के बाद हमने एक we got a full week, don't we? I mean almost a week of holidays this time. बिल्कुल सही बॉब. एक्चुअली ये तो एक बात हम भी फैमिली वाले हैं, तो बच्चों को भी कहाँ लेके जाना है सोचना पड़ रहा है, क्योंकि 9 दिन हो गए. 9 दिन कहाँ लेके जाएंगे, ये बात हमको सोचना पड़ रहा है एक्चुअली. Exactly. Well, lots more to talk about. Okay, let me go to RJ Nimmi. Nimmi, tell us about Eid holidays. You're also in UAE. Tell us, how has Eid been so far, and do you feel anything different from the last 2 years? हाय बॉबी. हाय बॉब. या बहुत ही डिफरेंट है इस साल तो, क्योंकि पास 2 साल से कोविड की वजह से ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं था. लेकिन इस साल थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, और क्योंकि छुट्टी भी बहुत ज्यादा है, 9 दिन का छुट्टी है ना, तो फर्क है, बहुत ही फर्क है. Definitely. And I'm sure the kids are really enjoying this long break, yeah? हाँ जी, बहुत ही उन लोग तो एंजॉय कर रहे, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है और घर पे ही है ना. बाहर कहाँ ले जाए, वैसे तो बहुत ही गर्मी है.
अरे अनुज भैया, you know she's a good cook by the way, Nimi. सच में निमी, फिर आपने इस ईद के समय पे कुछ तो स्पेशल बनाया होगा ना, कुछ सेवियां वेवियां हो हमारे लिए लेके आए हो, खाली हाथ आए हो? नहीं यार, क्या लेके आते मैं तो क्या बनाती, मेरी बेटी आई हुई है छुट्टी पे, तो उससे केक बनाया आज के दिन। तो फिर आपके तो घर पे अच्छा, जरूर आना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग को सबको वेलकम करती हूँ। exactly. I mean, we love cake. We love cake. Definitely. It doesn't matter. Pie some cake. We are ready, huh? ठीक है, आप लोग को सबको बुलावा देती हूँ मैं इस टाइम। Wonderful, wonderful. Singh Saab, अभी तो हमने शुरू किया है. Why not we start with a song? What do you think? बिल्कुल। हाँ? मैं सोचता हूँ हमारे सुनने वाले भी शायद गानों का इंतजार कर रहे होंगे। क्यों ना हम एक गाना Absolutely. सुने। या ठीक है, so let's go to our first song. And dear listeners, do stay tuned. If you have questions, if you want to comment, do comment in our Zoom chats. Do send us your comments on Facebook. We love to hear from you. Thank you so much for tuning in. We've got some wonderful surprises lined up today. So don't go anywhere. Let's listen to this beautiful Hindi song and we'll right back. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। Excellent. बहुत ही wonderful song, right? या बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। And जैसे what हमने meaning as well. या हाँ. व्हाट मीनिंग रियली। जैसे हमने गीत में सुना, निराशा में, मेरी निराशा में प्रभु मेरी आशा है। सच में प्रभु यीशु मसीह वही हमारी आशा है। जब हम निराश होते हैं, वो हमें आशा देने वाला परमेश्वर है। क्या खूब परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं। और परमेश्वर वो सच में अवर्णनीय परमेश्वर है, उसकी वर्णन हम कर ही नहीं सकते। परमेश्वर सच में कितना महान है, उसकी स्तुति हो। Praise God. Wonderful. Wonderful. अभी इधर कमेंट्स आ रहे हैं कि फैंस ऑफ राजस्थान रॉयल्स तो फेवरेट है. ओके, we will come back to that very soon. IPL fans, so thank you for tuning in. I can see a lot of comments coming in for IPL. Well, we love you that you are here today, and I hope that you will stay till the end of our radio session. Talking about music, Singh Sahab, abhi Hindustani or Western, you know, we've been playing songs on Bob's radio for the almost a year now, and there are so many wonderful, beautiful Western English songs out there. But Hindi songs, they have their own uniqueness. It's so wonderful to hear. So, isme thoda, can you tell us something about, you know, the difference, or maybe what is so special about that? या वेस्टर्न म्यूजिक
सच में एक अलग म्यूजिक है। पर उससे हटकर मैं जिस म्यूजिक को ज्यादा पसंद करता हूँ वो है हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स है म्यूजिक के। यू कैन हियर इन पंजाबी म्यूजिक इज डिफरेंट, और साउथ की म्यूजिक टोटल अलग है, नॉर्थ की म्यूजिक टोटल अलग है। और खासकर इनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जैसे सितार, बांसुरी, वीणा, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब जब बजते हैं, ये सब सच में कान को इतना मधुर सुनाई देता है ये आवाज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के। Absolutely. और इसलिए हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। Absolutely. I love it too. I love it too. Coming to RJ Anuj. Anuj, we've had Bob's Radio broadcasts in different languages. For our listeners out there, we have a Bengali language broadcast that happens every Wednesday. And today we have started a Hindi language broadcast. Now, there would be some questions asking, why do we need a Hindi language broadcast for Bob's Radio? What's the significance of Hindi? And why do you think that is such an important step? I mean, why? What do you think? बॉब एक्चुअली हिंदी जो भाषा है ना, मैं आपको बोलूँगा हिंदी भाषा एक ऐसा एक चमक है, वो लोगों को जोड़ता है। आप भारत में देखोगे, भारत में उत्तर जाओ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कहीं भी जाओ, एक जो भाषा है जो सब लोग समझते हैं वो हिंदी है। दूसरी बात जो है, हिंदी एक बहुत प्राचीन भाषा है, पर भी वो बहुत सरल भाषा है, इसलिए उसको सीखना, उसको समझना बहुत ही आसान है। ताजुब की बात मैं एक और चीज़ बताता हूँ। आप अगर जैसे मैं बताया कि मैं यूएई से हूँ, यूएई में भी यहाँ पे अरबी यहाँ की लैंग्वेज होने के बावजूद भी आप देखोगे, आप हर जगह जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको हिंदी में आराम से लोगों से बात कर सकते हो, आप उनसे वार्तालाप कर सकते हो। सही बात है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हिंदी विश्व में हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं में से तीसरे नंबर पे आती है। अच्छा। और अभी हाल ही में हुआ एक डेवलपमेंट था। अबू धाबी जो यूएई का कैपिटल है, उसने अरबी और अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी को अपनी अदालतों में भी इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दिया गया है। I did not know that, really. आप देख सकते हो, ये हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत कनेक्ट करता है, और इस कारण ये आप जो स्टेप लिया गया है ये सेगमेंट को शुरू करने का, मेरे को विश्वास है ये बहुत ही उपयोगी होगा, जो हमारे श्रोताओं के लिए है, जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो आगे भी जुड़ेंगे, क्योंकि उनको अपने लैंग्वेज में अपने आप दिल से पास आके सुनने को मिलेगा और प्रभु के बारे में जानने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जो हमारा आज का ब्रॉडकास्ट जो सुन रहे हैं आप लोग, इफ़ यू रियली लाइक दिस ब्रॉडकास्ट, इफ़ यू रियली वांट अस टू कंटिन्यू the Hindi language broadcast, please send us a thumbs up, send us a comment, send us your love, and we will continue to bring these broadcasts to you. Well, today we have a very special guest with us who is going to join us very shortly, telling us about her life and her story. But before that, we have someone who is familiar, who's been on Bob's Radio a couple of times, and I just want to talk to him quickly before we move forward. And this is none other than Saji Matthews. Saji Matthews was born in 1977 in Chhattisgarh. After his university graduation, he got his first big break when he got a job for a famous multinational corporation in Chennai. But here is where his story gets interesting. At the age of just 23 years, he lost his complete eyesight in both eyes. Now, in spite of this, he has successfully attained a postgraduate diploma in computer applications and went on to attain a master's degree in business administration. He now works as the Assistant General Manager for the Food Corporation of India. And not only that, he is famous around the world, especially in India, as a very good motivational speaker, both for corporates and also within the Christian environment as well. So very good speaker, an incredibly motivational man. Great to know him, great to have him on our radio today. I just want to welcome him and quickly ask him a question.
भैया बहुत सारे हमने ये हिंदी लैंग्वेज ब्रॉडकास्ट शुरू किया है, लेकिन जो लोग हमने दोज हु आर लिसनिंग टू अस, वी आर ऑल गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, एंड ऑन द रेडियो वी ऑफन से दैट वी नीड टू ट्रस्ट इन गॉड। यीशु मसीह पे विश्वास करना है, लेकिन यीशु मसीह पे हम कैसे भरोसा रखेंगे कि व्हेन वी आर फेलिंग, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, जब हम असफल होते हैं, जब हम टूटते हैं, तो हाउ डू वी ट्रस्ट इन गॉड इवन इन दोज डिफिकल्ट टाइम्स? थैंक यू बॉब, थैंक यू सो मच। धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं बहुत बहुत खुश हूं कि आज हिंदी के इस सेगमेंट में बॉब्स रेडियो के द्वारा मैं जुड़ पाया। हमारी जिंदगी में बहुत सारे तकलीफों से हम लोग दिन प्रतिदिन गुजरते हैं। कई बार ये तकलीफें शारीरिक होती है, कई बार मानसिक होती है, कई बार हमारे करियर बेस्ड होती है, लेकिन तकलीफें तकलीफें होती है। और इन सभी तकलीफों के बीच में हम लोगों को एक आशा, जैसा कि हम गाना सुन रहे थे, निराशा में यीशु मसीह हमारा आशा बनता है। लेकिन ये कैसे बनता है, यही हमारा सबसे पहला एक प्रश्न के रूप में बॉब हमसे जानना चाहते हैं। मैं इसको दो प्रकार से मैं बांटने की कोशिश करता हूं। एक, सबसे पहली बात, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु के रूप में हमें स्वीकार करना सबसे सबसे महत्वपूर्ण है। और उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना इसलिए क्योंकि जब हम उद्धारकर्ता के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे जिंदगी के प्रभुता को ले लेते हैं। वह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारे पापों के लिए ये सब कुछ उसने सहा। यह हमारा, हम जब उस पर ये अपना विश्वास डालते हैं, विश्वास करते हैं कि यस, मेरे लिए, मैं उस क्रूस पर जहां पर मुझे मरना था, यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख सहा। आज मैं उनके दुख के कारण, उनके परेशानी, मेरी परेशानी के कारण या मेरी तकलीफों के कारण जो उन्होंने सहा है, मेरा विश्वास उन पे देने के कारण मैं उनका बच्चा बनने के, उनको मेरी जिंदगी का प्रभुता देने के मैं काबिलियत में आता हूँ। वो एक है जिसके द्वारा मैं एक पर्सनल रिलेशनशिप में, व्यक्तिगत संबंध में मैं उस यीशु मसीह के साथ आ पाता हूँ। दूसरी बात, एक बार हम प्रभु में आ गए, हम विश्वास में आ गए, हम विश्वासी बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पृथ्वी से, इस धरती से हमारी सारी मोह माया हम लोग दूर हो करके पूरी तरीके से हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू, हम पूरी तरीके से प्रॉब्लम फ्री जिंदगी हम नहीं जी सकते, क्योंकि हम पाप मैं इस धरती पर जी रहे हैं। हमें तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उस परिस्थितियों में भी हम कैसा भरोसा रख सकते हैं, यह है हमारा प्रश्न। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक कहानी में लेकर के आप लोगों का ध्यान लेकर के जाना चाहूंगा। सुसमाचार के में हम पढ़ते हैं, शिष्य लोग नाव में यात्रा कर रहे थे, बहुत तूफान आया और यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि उस समुद्र में वो चल करके आ रहे हैं, पानी के ऊपर में चलते हुए आ रहे हैं। जब वो चल करके आ रहे थे तो वहां पर शिष्यों में से एक पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु अगर आप हो तो आप मुझे अनुमति दे कि मैं भी आपके पास पानी में चलता हुआ आऊं। यीशु मसीह ने तुरंत कहा, आ जाओ। पतरस को अनुमति मिली। पतरस तुरंत नाव से कूदता है, पानी के ऊपर आता है, प्रभु के पास जाने के लिए वो कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। और ये सब कुछ इतना सुंदर तरीके से हो रहा है कि वो पानी के ऊपर में चल करके प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह आसपास के उठती हुई लहरों को जब वो अपने नजरों में जब देखता है, तुरंत वह डूबना शुरू हो जाता है। मैं इस बात को यह समझता हूं कि हम लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारे बात, विश्वासी होने के नाते हमारी जिंदगियों में भी प्रभु के बात को हम लोग समझते तो हैं, उसको जैसा हम वाक्य ने उन्होंने कहा, हम पूरी तरीके से भरोसा कर लेते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद हमारी जिंदगी में हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें हमें आकर्षित करने लग जाती है, हमें उनकी ओर अपने ध्यान
लेकर के जाने की कोशिश करती है, और हमारा भरोसा प्रभु से हट करके उन बातों पे हो जाता है, और धीरे धीरे हम परेशानियों में, तकलीफों में जा करके हमारा विश्वास डगमगाता है। लेकिन भैया सब लोग है ना, बहुत बहुत सारे लोग को ये सब मालूम है, लेकिन क्या होता है कि यीशु मसीह के सिवाय दूसरों पे हम क्यों भरोसा रखते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वो कभी भी परमेश्वर के करीब आने के लिए हमें अनुमति नहीं देता। हम इस पापमय शरीर में जी रहे हैं, पापमय धरती पे जी रहे हैं, और बाय नेचर, प्राकृतिक तौर पे हम परमेश्वर से दूर हुए हुए लोग हैं। तो हम कभी भी परमेश्वर के करीब हम नहीं पहुंचना चाहेंगे। हमारा कोई भी प्रकार की, इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि देयर विल बी नो फैकल्टी व्हिच विल बी अलाउइंग अस टू गो टू गॉड। एक भी ऐसे अवयव या ऐसी अनुभाग नहीं होगी हमारे शरीर में जो हमें परमेश्वर के करीब जाने के लिए अनुमति देगी, उससे हटाने की ही कोशिश करेगी। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा ध्यान जब हम प्रभु के बात पे लगा करके जब हम चलते हैं, प्रभु के वाक्य को हम याद करके चलते हैं, प्रभु यस आपने कहा, मैं चल रहा हूं, बस आप पे ही भरोसा, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं, केवल आपको देख रहा हूं, ये लगा करके हम एक चलते हैं। और कुछ देर के बाद जब हम बाकी चीजों पे जब हम आकर्षित हो जाते हैं, हमारा भरोसा टूटने लग जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको इसको एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आज का ही एक उदाहरण लेता हूँ। आज मैं छुट्टी में था और मैं अपने परिवार के साथ आउटिंग में गया था, और मेरी वाइफ अच्छी घुड़सवार है, और घुड़सवारी करते हुए मेरे बेटे को मैंने कहा कि आप जाइए, आप भी घुड़सवारी के लिए। तो पहले उसने मना किया, क्यों? क्योंकि वो अकेला जाना नहीं चाहता था। उसने कंडीशन रखा, ओके मम्मी है तो मैं मम्मी के साथ जाऊं, एंड ही वाज देयर ऑन द हॉर्स। वो दोनों के दोनों बैठे, घोड़े में घूमे, वापस आए। फिर मैंने उससे प्रश्न पूछा कि आप डरे नहीं? तो उसने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा मैं अगर गिर भी जाऊं तो मेरे साथ मम्मी है। सी, हमारी जिंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी का प्रभुता करता है, हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है। हम यीशु मसीह के सामने एक छोटे बच्चे की जैसे अगर हम भरोसा कर ले, यस आप ही है मेरे प्रभु और कोई नहीं, आप मुझे गिराएंगे नहीं, आप मुझे अगर मैं गिरने की कोशिश भी कर लूं आप मुझे थाम लेंगे। यही बात पतरस की जिंदगी में हम देख, वह जब डूबने लगा प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसको खड़े कर दिया, और दोनों के दोनों चलने लगे। यही तो भरोसा है। हम आसपास कभी हम इधर उधर जब भरोसा करने की कोशिश करते हैं, हमारे बुद्धि से, हमारे तर्क से, हमारे रीजनिंग पावर से, हमारे इन्फ्लुएंसेस से, जब हम अपने आप से परमेश्वर से हट करके बाकी किसी भी चीज पे भरोसा करते हैं, वो हमें जरूर जरूर हमारे विश्वास को डगमगाएगा, हमारे विश्वास से हमें दूर करेगा, प्रभु से हमें हटाएगा। तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, एक छोटे बच्चे के जैसे प्रभु पे भरोसा कीजिए। और उसके सामने होता है ना, जैसे बच्चा बोलता है कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, बी लाइक ए चाइल्ड। एक छोटे बच्चे के जैसे उस प्रभु पे अगर हम अपना पूरा विश्वास डाल दे, भरोसा डाल दे, वह कभी नहीं त्यागेगा, वह कभी नहीं छोड़ेगा। Amen. Wonderful. Wonderful. Bhaiya, thank you so much for those wonderful words. We are going to continue talking to you. This does not end here. But before that, Singh Sahab, एक और गाना सुना के वापस आएंगे? बिल्कुल बॉब, क्यों ना मैं गाना सुने। ठीक है, तो let's listen to another wonderful song, and don't go anywhere. We're going to bring our special guest on air and talk to her very soon. So we're going to hear the song and come right back. मैं हूँ तेरा, इश्क तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। मैं हूँ तेरा, इश्क तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। तू ही है जीवन, है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत। तू ही है जीवन, है मेरी चाहत,
सब तुझ में मिला, बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। जब मैं कमजोर और टूटा हुआ था, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, तूने मेरा प्याला भरा। जब मैं था अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं. What a wonderful song. What a wonderful truth. Tere jaisa koi nahi. Well, with that, let's go to our special guest today. But before I bring her on here, we're going to listen to a sound bite that she has sent us. Now, our special guest for today is Sister Mary Lijish. And Mary Lijish, those of you who've been listening to Bob's Radio will know her. She's been contributing to our sound bites section, where she's been sending us some wonderful stories, both in Hindi and in English. And she keeps sending them to us. It's such a blessing to have those clips and those recordings. Let's hear one of those, and then we'll talk to her live on air. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉब्स रेडियो और मैं हूं आपके साथ मैरी। तो कैसा चल रहा है 2022? उम्मीदों से बढ़कर बढ़िया या निराशाओं का ढेर? चुनौतियों का डटकर सामना या हिम्मत हारने लगे हैं? अगर आप टूटे हारे मन के साथ यह सुन रहे हैं, तो मैं आपसे अपने अनुभवों से यह कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट ओवर येट। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऐसा अगर आपको लगता है कि सारी आशा समाप्त हो गई, कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तो विश्वास कीजिए, अभी बस शुरुआत है। गिर गिर कर ही तो हम चलना सीखते हैं। एक एक कदम प्रभु के साथ विश्वास रखकर बढ़ाइए। उम्मीद ना छोड़े, आशा ना खोए, हिम्मत ना हारे और हार ना माने। प्रभु आपकी सहायता करे। टेक केयर, बाय बाय। Bye-bye. Sister Mary, thank you so much for that clip. Well, we have lots to talk about. Let me introduce her to our listeners, to our friends. Sister Mary was born in Lalitpur, Uttar Pradesh. After finishing her school from St. Cathedral ICSE College, she then completed her BSc Chemistry from IGNOU. Later on, she went to finish her Masters in Divinity from the Trinity Theological Seminary, and also trained under the Haggai Institute's leadership program. She's married to Pastor Lijish Thomas, and they have served the Lord together in many places in India, in Delhi, Mumbai, and so many other cities. She's got two kids, Mishael and Raphael, and for the past 16 years, she is teaching both secular students and biblical classes. She also works at the Church of God headquarters in Mumbai. She is the Dean of the Ladies Bible College. She's also involved with the VBS ministries as well. And just like we heard
today from that clip. She's done more than 300 of those stories and clips for children in Hindi for another radio called Radio Masih. She's also contributed to Bob's Radio, both in English and in Hindi, and she comes up with these wonderful stories and these clips, and we always love to have her segments. Well, when I spoke to her, she told me that her life's mission is to equip others to share the gospel and work among the youth and tell them about Christ. Well, it's time to bring her on air. Let's bring Mary Lijish on air. Bob's Radio 21.37. Keep bobbing along. Hi, Sister Mary. Welcome to Bob's Radio. हाय बॉब, नमस्ते। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। All right. Well, hello. Sing sub. Yes. Yeah, well, hello, Sister Mary. A very Hello, good hello. evening to you. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह Yeah, की। जय मसीह की। हम सब बहुत खुश हैं, आप हमारे संग साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, और हम भी बहुत ही खुश है। या सो जैसे कि बॉब हमें बता रहे थे आपके बारे में कि आपने इतनी सारी सेवकाइयों को परमेश्वर के लिए किया है। सच में कितना आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है और कितने परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल किया है, और परमेश्वर आगे भी आपको इस्तेमाल करते रहे, यही हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। और बॉब ये भी बता रहे थे कि आपने 300 से ज्यादा कहानियों को बच्चों के लिए रेडियो मसीही में बोला है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कहानियां हैं, ये आपने कहीं बचपन में कभी सुनी थी या आपने इन कहानियों को खुद ही रचा? नहीं, ऐसे कहने को तो कुछ तो हमारी लाइफ के आसपास की जो घटनाएं होती है, कुछ ऐसा है। लेकिन Okay. इतने सारी कहानियां, कुछ को मैं नेट में ढूंढती हूँ, कुछ को या बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, कुछ हमारी छोटी छोटी घटनाओं से ऐसे मतलब सबका एक क्या बोलना थी, जैसे बोलते हैं ना, सांबार अवियल मिक्सचर है। जहाँ से Yeah. मिलता है वहां से सब कुछ ले लेते हैं। और Yeah. ये कहानियां जो हमारे जीवन को बदलने वाला, जैसे पहले वो मुझे ही कुछ सिखाता है, मैं उससे कुछ इंस्पायर होती हूँ, वैसी कहानियों में लेती हूँ जिससे मुझे कुछ प्रेरणा मिले। और जैसे मैंने बोला कि उसने बताया था इंट्रोडक्शन में कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो 2 साल से जब से हैं तब से मैं उनको कहानी सुनाती हूँ, ऐसे बाइबल से कहानियाँ ऐसे सुनाते सुनाते मेरे सारी कहानियाँ खत्म हो गई थी। फिर मैं ढूंढने लगी। और अभी जो भी कहानियां मैं रिकॉर्ड करके बेचती हूँ, पहले तो क्या करती थी, कमरे में बंद होके करती थी, लेकिन वो जब छोटे बच्चे हैं ना, 8 साल के 10 साल के, वो बाहर आवाज करते तो वो सब रिकॉर्डिंग में आ जी। जाता है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, अपने साथ ही उनको बिठा के मैं उनको लाइव कहानी सुना रही होती हूँ। Oh, that's great. अब मतलब तब बिल्कुल एकदम शांत रहते हैं, एक्सप्रेशन वो सब मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। और मुझे समझ में आता है कि हाँ, इनको समझ में आ गया, क्योंकि कहानी के जब एंड होता है, एंड होते होते ही समझ में आ जाता है कि हाँ, इनको समझ में आ गया, उनका चेहरा बदलने लगता है, वो कोई मैसेज मिलता है। तो या वो लाइव सारी जो कहानियां हैं वो मैंने अपने बच्चों को सुनाया है, बस मैंने रिकॉर्ड किया है फोन को ऑन करके और लैपटॉप का बैकग्राउंड म्यूजिक देके। तो ये सारी कहानियां मुझे पहले अच्छा लगा है, मुझे पहले बल दिया है, स्ट्रेंथ दिया है। मेरे दुख के समय में मेरे को ऐसा ही कुछ कहानी मिल जाता है जो मुझे पहले उठाता है, तो मैं सोचती हूँ कि और लोगों को भी ये भेज दे तो अच्छा है, इसलिए भेजती हूँ मैं। या बहुत सही है। बहुत ही अच्छा लगा आपके विषय में जानकर। और हमारी यही प्रार्थना है कि आपने जितने भी कहानियों को छोटे बच्चों को सिखाया होगा, जवानों के बीच में आपने शेयर किया होगा, वो कहानियां जरूर एक दिन उनके दिलों में काम करे और वे लोग भी परमेश्वर के करीब आ पाए। और अनुज भाई, आप क्या बोलते हैं? सिस्टर मेरी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। आप, हमने अभी सुना कि आप काफ़ी सेवकाइयों में व्यस्त हैं। जैसे बॉब बता रहे थे कि आप रेडियो मिनिस्ट्री में आपको बहुत एक स्पेशल इंटरेस्ट है। किस बात या किसके कारण आपको ये इसमें एक उत्साहित हुए आप? इसका श्रेय भी रोना का देना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे जो गाँवों में जहाँ पर नेट वगैरह थोड़ा स्लो होता है, तो जूम मीटिंग वर्शिप वगैरह नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में। तो शिबू थॉमस करके एक अटलांटा में पास्टर है, उन्होंने एक ऐप शुरू किया था रेडियो मसीह करके। तो उसमें वर्शिप डाला गया था, आराधनाएं रिकॉर्ड करके इस तरह से पहुंचाया जा रहा था। तो जो हिंदी जानते हैं पास्टर्स को, उनको बोला गया, उनके द्वारा मुझे भी बोला गया कि कुछ भेज सकते हो तो भेज दो।
तो मैंने सोचा कि गाने सब लोग बेचते हैं, प्रचार सब लोग बेचते हैं, तो मैंने बोला ना बच्चों को ही कहानी सुनाती आई हूँ, लेकिन मुझे बस वो अच्छे लगते हैं, मतलब बच्चे अच्छे लगते हैं, कहानियां अच्छा लगता है, कहानी सुनाना अच्छा लगता है। तो मैंने बस ऐसे ही रिकॉर्ड करके भेजा और ऐसे ही रेडियो मिनिस्ट्री में आ गई मैं, वरना मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। बस कहानियां बेच बेच के फिर ऐसे इतना बेच बेच के 1-2 साल से भेज रही हूँ। तो उसमें मतलब प्रभु की एक योजना थी कि रेडियो मिनिस्ट्री में आ गई और कहानियां भी सुनाने लगी, जो बच्चों को सुनाती थी वो अब सबको सुनाने लगी। तो और एकदम एकदम बॉब्स रेडियो के जैसे है। हाँ हाँ या यस हाँ जी। हम्म। या कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी। या तो ऐसे ही चल रहा है, अब पता नहीं कब कहानियों का स्टॉक खत्म हो जाएगा लेकिन परमेश्वर कहानियां देता रहेगा, ये ऐसे विश्वास करते हो। ऐसे ही परमेश्वर की योजना से, मैंने कोई प्लान नहीं किया था, परमेश्वर की एक योजना है, तो हम बस उसके लिए एक दिल रखेंगे, तो जो हमें अच्छा लगता है उसमें हमें लगातार करते रहना चाहिए। अपने बच्चों के साथ हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर उसी को छोटा सा, जैसे कि वो 2 मछली 5 रोटी के हिसाब से परमेश्वर को दिया तो वो बढ़ाता है, वैसे ही बस बच्चों के ही काम है, बस परमेश्वर ने उसको बढ़ाया है, बाकी कुछ भी नहीं है। Wonderful, हाँ wonderful. जी। हाँ जी। Well, sister, it's always a joy to listen to your stories and your messages. I've enjoyed sharing that on Bob's Radio for the past 1 year, and you know it's such a joy to listen to that. But those stories and like you said, those experiences they've been you've been molded in a certain way. So can you share with us your childhood memories growing up and what life was like for you at that time? हाँ, ऐसे तो कहे तो जैसे सब लोगों का बचपन होता है वैसे ही मेरा बचपन भी था, लेकिन अ, अ, मेरे पापा मम्मी केरल के हैं, लेकिन उनको एक यूपी में, मतलब झांसी ललितपुर के उस साइड में, पहले पापा ललितपुर में थे, वहां पर उनको एक गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन नामधारी विश्वासी थे वो लोग। ऐसे ही जा रहे थे, करते करते पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैं शायद 4-5 साल की थी कि पापा की तबीयत बहुत खराब होने लगी। तो मम्मी को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है इनको। सब लोग बोलने लगे कि इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप इनका ट्रीटमेंट कराओ, तभी मम्मी को समझ में आया, वरना वैसे। लेकिन धीरे धीरे पापा का स्वभाव बहुत बदलने लगा, फिर हम लोग केरला में गए छुट्टी वगैरह लेके पापा, तो ऐसे करते करते इलाज वगैरह चल रहा था, और मम्मी को हम देखते थे कि हमेशा मतलब रोती रहती है, हमको इतना समझ में नहीं आता था, हम तो 4-5 साल के ही थे, ऐसे रोती रहती है, हमेशा दुख में रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर में भी झगड़ा होता रहता था। बट कभी कभी कुछ दिनों, कुछ तो बहुत डरावने दिन थे, हम बता नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे दिन Hmm. भी निकले हैं हमारे जीवन में। लेकिन ऐसे होते होते एक दिन मम्मी अपने घर, हमारे घर के सामने बैठ के ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, पता नहीं तभी एक 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 आंटी आई, पास्टर की वाइफ थी वो, बाद में समझ में आया, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, 3 दिन तक हमको हमारे लिए उपवास किया, प्रार्थना किया। फिर पापा भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगे, फिर हमको समझ में आया कि हमारे घर में जो था नहीं अभी, वो शांति, वो आशा, वो प्रेम, वो यीशु मसीह के सचमुच में हमारे घर में आने से वो बदल गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। मेरा जो बचपन था वो धीरे धीरे अब खुशियों से भरने लगा, लेकिन वो जो खुशी आया केवल यीशु मसीह के हमारे घर में आने से आया। और एक तरह से कहे तो अच्छा हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि इसलिए हम लोग सब मसीह में आ सके। और Hmm. या ये बचपन थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ दिन तो बहुत डरावना था, लेकिन उसी वजह से हम दुख और सुख को हम समझ सकते हैं, और यीशु मसीह का क्या हमारे जीवन में भाग है वो हम समझ सकते हैं। और उसी समय से मैंने ये सोच लिया था कि मैं भी आंटी जैसे ही पास्टर की वाइफ बनूंगी, क्योंकि वो हमारे घर में खुशियां लेकर आई है, ऐसे ही मैं भी अनेकों के घर में खुशियां लेकर आऊंगी। वही निर्णय था, बचपन में लिया हुआ निर्णय था कि बड़े होके मैं यीशु मसीह को बताने वाले एक पास्टर की वाइफ बनूंगी। Hmm. हम्म। Okay. All right. And I know as we were talking, you shared about some struggles that you faced in your life, both in childhood and also in ministry. And in the intro, I mentioned that there were 2 children. But I know there is a painful experience, an incident that happened in your life. Sister Mary, can you share या those painful हाँ हाँ experiences? हाँ Yeah. जी हाँ, हम लोग सेवकाई में निकले थे। बचपन में तो ऐसा सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे मैंने बोला कि
उससे हम एक अच्छा इंसान बन सके, दूसरों को दर्दों को, दूसरों की दुखों को, परेशानियों को, ऐसे परिवार में क्या होता है, ऐसे हम समझ सके कि ऐसे जब घर में झगड़ा होता है तो बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या तनाव होता है, ये सब समझ सके थे और ऐसे निकले थे। लेकिन पहले पहले हमारे शुरुआत की जो कुछ साल थे वो बहुत ही कैसे क्या बोलना चाहिए, परीक्षाओं से भरा, अग्नि से जैसे जाते हैं तप कर, उसी तरह से हमारा जीवन था। हमारा एक बेटा था एबन नाम का, वो 8 महीना का था, हमारे साथ था और अचानक उसका एक दिन डेथ हो गया। हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमने ऐसे कभी प्रिपेयर भी नहीं थे, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अचानक ऐसा एक घटना हमारे जीवन में आया। लेकिन परमेश्वर को कभी भी, परमेश्वर को प्रेम को हमने कभी भी शक नहीं किया कि परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, ऐसे कभी शक नहीं किया, कभी भी हमें वो गिरने नहीं दिया। वो कैसे वो सब सहा मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, मुझे अभी भी वो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से मुझे ऐसा निकाला। जो मेरे आसपास थे सब लोग बोलते हैं कि ये कैसे ऐसे सह सकती, फिर भी मुस्कुरा के कैसे खड़ी रहती है। लेकिन परमेश्वर ने वो सारा दुख दर्द सोख लिया। गॉड सोक्स ऑल आवर पेन्स। एक सचमुच में ऐसा मेरे जीवन में हुआ कि अगर एक माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसे बता रही है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में खुशियों से भरा वो दुख को जैसे मिटा दिया। और परमेश्वर ने एक बड़ी, एक अच्छी आशा हमारे जीवन में दिया। और ये इस सब से ये हुआ कि क्या, हमेशा हमेशा बोलती हूँ कि जीवन का क्या मूल्य है। मतलब दुख, पूरा संसार भी आप मुझे दे दोगे तो मैं उसको वापस लेकर नहीं आ सकती। तो मुझे वो समझ में आ गया कि लाइफ की क्या वैल्यू है। हम कुछ भी हमारे पास हो, हमारा जो लाइफ नहीं है, हमारा जीवन नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लाइफ है, उसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी देके हम उसको वापस नहीं ला सकते। तो वो लाइफ की क्या वैल्यू है और बाकी सब सामानों का, पैसा का, दौलत का, गाड़ी बंगला का क्या वैल्यू है, वो मुझे उसी दिन से सिखा दिया। और कैसे हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मैं क्लिप में आपने सुना होगा, हिम्मत नहीं हारना, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना, वो हमारे साथ रहेगा। ये अपने जीवन से ही मैं बोलती हूँ, क्योंकि अगर उस समय हिम्मत हार जाते तो शायद आगे के बच्चे भी मेरे नहीं हो पाते, क्योंकि मेरा कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हमेशा रहता था। लेकिन परमेश्वर ने उस समय हिम्मत हारने नहीं दिया और परमेश्वर ने मेरा साथ दिया पूरा पूरा, और परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ाया। और इससे कंपैशन, क्या दया, दयालु, करुणा और ये सब कुछ भावनाएं, सहानुभूति, लोग जब दुख दर्द में होते हैं तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उनको समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी उससे गुजरी। तो एक अच्छा इंसान बनाया परमेश्वर ने इन दुखों के कारण। सच में अंधकार की परिस्थितियां सबके लाइफ में होती हैं। जैसे सिस्टर ने अपने स्ट्रगल्स को, अपनी जीवन की दुखित घटनाओं को उन्होंने हमसे शेयर किया। सच में पर बाइबल इस सच्चाई को बताती है। भजन संहिता 23 उसके 4 में दाऊद इस प्रकार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सच में परमेश्वर, हमने देखा बहन के जीवन में परमेश्वर कैसे उनको अपने साथ लेकर चलता रहा। परमेश्वर उनका चरवाहा रहा। अंधकार की परिस्थितियों में भी, अंधकार के समय में भी परमेश्वर ने उनके हाथ को कभी छोड़ा नहीं। यहोवा सच में हमारा अच्छा चरवाहा है। क्यों ना हम बॉब के साथ एक और गाने को सुने, घोर अंधेरे में।
रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है। और हमारे साथ बॉबी वर्गीस हैं, वो आपकी गवाही सुनकर उन्होंने आपके लिए कमेंट किया कि वंडरफुल टू हियर सिस्टर मेरी टेस्टिमनी। और सच में धन्यवाद आपका, आपने अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। और मैं आपसे एक और सवाल को आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हेलो। आपने जैसे कहा कि आप एक पास्टर की पत्नी हैं, और आपने एक समय में सोचा भी था कि मैं इस आंटी के समान एक पास्टर की पत्नी बनना चाहती हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि वो सपना आपका पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ और जी। जी, एक पास्टर की पत्नी होने के नाते आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी घर पे, और ऐसी कुछ जिम्मेदारियों का आप हमसे शेयर कर सकती हैं जो आप घर पे निभाती हैं, या जिनके देख रेख आप करती हैं, या जिन जिम्मेदारियों को आप निभाती हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब पास्टर की वाइफ होने का मतलब है कि आप एक केयर टेकर भी हो, बेबी को देखने वाले भी हो, खाना बनाने वाले भी हो, सब कुछ होते हैं पास्टर की वाइफ मतलब जी जी सब कुछ करना होता है। आई मीन जिसकी जरूरत होती है उस हिसाब से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, हर मतलब उनको समझ कर, और हर उम्र के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा के लोग होते हैं, और अलग अलग जगह से लोग आते हैं, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। उन सबको हर एक जन अलग अलग होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक जन, हर परिवार में जो अगर 4 लोग होंगे तो वो चारों लोग अलग होंगे, अलग अलग, जी बिल्कुल। अलग अलग होंगे। उन सबको समझ के उन सबके साथ आप एक जैसा बर्ताव भी नहीं कर सकते। किसी के साथ आपको ढीला होना पड़ता है, किसी के साथ आपको सख्त होना पड़ता है, किसी के साथ आपको नम्रता दिखाना पड़ता है। मतलब आप हर एक व्यक्ति अलग होता है, और क्या हर एक के साथ आप मौजूद रहना पड़ता है। किसी को कुछ शब्द चाहिए होता है, किसी को कुछ हेल्प चाहिए होता है, किसी को लिटरली खाना बना के ही देना होता है। तो मतलब आप उसकी जरूरत के हिसाब से आप उनको समझते हैं, उस हिसाब से पवित्र आत्मा आपको, पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको आवाज देता है कि ये करो बेटा, ये करो, उसको याद करो, उसको बुलाओ, उसके साथ रहो। पवित्र आत्मा को अगर सुनने को तैयार होते हैं तो हमें सही से वो गाइड करेगा। और ऐसे ही हर जगह पर सबसे खासकर नौजवानों के बीच में, जवानों के बीच में जो उनकी जो समस्याएं होती है उनको समझना, उनके साथ रहना, सबसे पहले उनको सुनना बहुत जरूरी पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम, मतलब बहुत अलग होते हैं, हम उनको सुनेंगे नहीं, उनको भगा देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। सही है, तो हमें सही है। उनको सुनना पड़ता है। और कभी कभी काम भी ज्यादा होता है तो मैंने एक बुक पढ़ा था बहुत साल पहले कि हमारे माथे पे जो लकीरें होती हैं, मतलब कोई आता है और हम ऐसी लकीर बना देते तो हम मतलब सुनने को भी तैयार नहीं है, तो वो चला जाएगा। तो हमारे चेहरे को देख के वो हमको सुनाता है। तो जी हम उनके लिए मौजूद रहना, बी अवेलेबल, मतलब उपलब्ध रहना। वो कभी भी हमारे पास कोई भी विश्वासी, कोई भी आए, वो सब परमेश्वर की संतान है, उन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो उनको सुनना, उनको संभालना, उनको अच्छे तरह से उनको गाइड करना, सारे रोल निभाने पड़ते हैं, माँ का भी, बहन का भी, सब चीज का एक पास्टर की वाइफ को निभाना पड़ता है। मेरे हिसाब से तो मैंने तो यही समझा है। और मुझे तो लोग पसंद है, आई लव पीपल, उनसे बातें करना, मिलना, मुझे पसंद है ये काम, इसलिए मैं इसे खुशी खुशी कर रही हूँ। और तो मुझे नहीं पता, सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे लगता है ये पास्टर की वाइफ बनना। सही सही है। हाँ जी, हम उनके दुखों में हम शामिल हो सकते हैं और उनके साथ हम रह सकते हैं, उपस्थित रह सकते हैं। उससे बड़ा और कौन Absolutely. ऐसे जा सकता है। हाँ Absolutely. I think we have RJ Nimi sitting quietly there, but I think definitely she has something to ask. Over to you, RJ Nimi. हाँ, मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर मैरी से। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती और आप हमारे रेडियो सुनने वालों को आप कुछ बातों से उत्साहित करें, विशेषकर उन जवान महिलाओं को जो परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं। आप कुछ बोलना हाँ चाहें जी, तो हाँ जी, अच्छा हाँ रहेगा। हाँ जी, हाँ। अब मैं, जैसे मैंने पहले बोला कि ये इस सेवा से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है। ये सौभाग्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें इसमें बुलाता है।
परमेश्वर ही कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर ही हमारा अपॉइंटमेंट देता है। परमेश्वर हमारा बॉस है और दुनिया के बॉस की तरह नहीं है, अच्छा है, फेथफुल है, विश्वास योग्य, दयालु है और हमारा पिता है। बस हमको चाहिए कि हम मरियम की तरह उस चरणों में बैठकर वचन को सीखे, प्रार्थना करें, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को, जैसे अपने बच्चों को ही देखने का होगा पहले, वही मैंने पहले किया था। 5 साल पहले अपने बच्चों को ही वचन सिखाना शुरू किया था और उनको मजबूत करें। फिर जैसे कहावत है ना कि जो घड़ा भरता है वो छलक कर बहने लगता है। धीरे धीरे हमारे अंदर परमेश्वर का जो प्रेम है वो बहने लगेगा, वो दूसरे आत्माओं तक अपने आप पहुंचेगा। हमें कुछ भी नहीं करना है। वो हमारी निर्बलताओं में वो उसका सामर्थ हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, दर्द आएंगे, पर उस समय कभी भी परमेश्वर को प्रेम को डाउट नहीं करना है। हमेशा वो हमारा साथ रहेगा। वो भला पिता है और हम उसके लाडली बेटियां हैं। किसी एक पास्टर की वाइफ ने मुझे बुलाया था लाडली, डार्लिंग डॉक्टर। ऐसे मुझे जब भी मैसेज करती है डार्लिंग डॉक्टर ऑफ गॉड ऐसे बुलाती है। तो मैं भी अपने जो विश्वासी लोग उन लोगों को मैं बेटा ही बुलाती हूँ, बेटा, इस तरह से। तो परमेश्वर भी हमें ऐसे ही बुलाता है, डार्लिंग डॉक्टर। बस हमें काम करने का हमें एक मन होना चाहिए। परमेश्वर हमें मौका पक्का देगा और उसके लिए वो कुछ भी काम देता है तो उससे पहले परमेश्वर उसकी सामर्थ्य से हमें पक्का भरेगा। तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको सहायता करे, यही मुझे बोलना है। Wonderful. थैंक यू। Yes, sir. Wonderful. Thank you. Sister Mary, thank you so much. I think Nimi, थैंक यू। we really enjoyed that. Thank you for that question. And Sister Mary, it was such a joy to have you with us today, sharing your story and your experiences. Once again, thank you so much. Thank you so much for all that God is doing through you. So happy. थैंक यू सो मच। मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, अपना अनुभव शेयर करने के लिए मिला। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. Well, dear listeners, we are not done. We still have one more guest, or in fact, Sajibhaiya, who had already come. We want him to give us the final words. But before that, Singh Saab, maybe we'll listen to one more song and come back. Yeah, definitely. Why not? All right, let's listen to our last song for today. It's one of my favorite songs, a beautiful song. Let's listen to that and we'll right back. यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु तू
मुझको सबसे हंसी चाहूं मैं बस तू मिल जा मसीह तेरे वचनों से राह मेरी राहों पे रोशनी तेरी यीशु मोरे मोहे तू बता पावन हुआ है मुझ में खता शुद्ध कर दो लहू से जरा तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा यीशु मोरे मोहे तू बता पावन हुआ है मुझ में खता क्या गाना सजी भैया, what a song. Amazing, amazing. यीशु मोरे मोहे तू बता मैं कैसे जीऊं। मेरे पास जीने के लिए इस दुनिया में धोखे के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु आप बता कि मैं कैसे जीऊं। What a song. What a song. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं बॉब आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इन गानों के लिए। सो टचिंग, बहुत स्पर्शी गाना आपने लेकर के आया और हम सबके लिए, श्रोताओं के लिए, साथ साथ हम सब के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब के लिए एक प्रचोदन का काम किया है, उसमें कोई शक नहीं है। या थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट। या और आपने पहले बताया था, पीटर के बारे में बताया था और डिसाइपल्स के बारे में बताया था। अभी हमने इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू ऑल आवर डियर फ्रेंड्स एंड आवर वंडरफुल लिसनर्स आउट देयर। बट बिफोर वी से गुड बाय, सजी भैया, व्हाट आर योर फाइनल वर्ड्स? मेरे ख्याल से हम सबकी जिंदगी में, जैसे हम अभी सुन रहे थे सिस्टर मेरी की जिंदगी की कहानी को, हम सब की जिंदगी में एक दर्द था, है और रहेगा। लेकिन उस दर्द जो था या दर्द जो है, अगर हम उस दर्द को हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य के रूप में अगर हम उसमें से देखने की कोशिश करें, तो हमारी जिंदगी सार्थक बन जाती है। असफलताएं होंगी, परेशानियां होंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन उस परिस्थितियों में भी अगर हम यह मान करके चले कि मेरा प्रभु, मेरा जो स्वामी है, वह मुझे कभी ना त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा। मैं बॉब फिर से मैं आपको उस पतरस की कहानी पे मैं लेकर के जाना चाहूंगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूं जब मैं कॉर्पोरेट टॉक्स करता हूं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, वो ये है कि पार्टिसिपेशन इज अ की ऑफ सक्सेस। भागीदारी सफलता की एक कुंजी है, लेकिन उसका एक दूसरा भाग भी है, वो ये है गैर भागीदारी असफलता की कुंजी। अगर हम किसी भी काम में, किसी भी बात के लिए प्रभु ने जो हमें दिया है, अगर हम उसमें भागीदारी नहीं दे रहे, तो हम एक या दूसरे तरीके से हम असफल हो रहे हैं। ये पतरस के साथ वहां पे 11 और शिष्य लोग उस नाव में बैठे हुए थे, लेकिन जो अनुभव पतरस को मिला, हम केवल उस कहानी में केवल पतरस को डूबते हुए, पतरस की असफलता ही देखते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं कि वह विश्वास नहीं किया, वह विश्वास में हिल गया वगैरह वगैरह। लेकिन आप सोच करके देखिए, वो 11 के 11 जो उस नाव में बैठे थे, क्या उनको वो अनुभव रहा जो पतरस को था? उसका एक दूसरा एक और भाग मैं आगे जाकर बताना चाहूंगा, वो ये है, ये बात सही है कि पतरस चलना शुरू किया पानी के ऊपर में, कुछ दूर जा करके वो डूबने लगा। यीशु मसीह का स्पर्श उसने पाया और वो
प्रभु ने उसको खड़ा किया। लेकिन आप उसके बाद का वह जो सीन है, वो चित्र है, उसको थोड़ा सा अपने दिल में, दिमाग में थोड़ा लाने की कोशिश कीजिए। पतरस यीशु मसीह का हाथ पकड़ के, या यीशु मसीह पतरस का हाथ पकड़ करके पानी के ऊपर चलते हुए वो वापस नाव में आते हैं। What a privilege! क्या अद्भुत एक समय रहा होगा पतरस के लिए, यीशु मसीह का हाथ पकड़ करके वह पानी में चलते हुए आता है। That was the ultimate success in his life, जो 11 के 11 शिष्यों को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने असफलता को देख करके, असफलता के डर से उन लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए, उन लोग भागीदार ही नहीं हुए। तो आप भागीदार अगर होएंगे प्रभु की बुलाहट के लिए, जब आप निकलेंगे, प्रभु पे विश्वास करेंगे, प्रभु के लिए जब आप अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे, असफलताएं आएंगी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपका प्रभु आपके साथ है, वो आपको हाथ पकड़ के थामेगा। जैसा गाना गाने वाला भी वो जैसा लिखने वाला कह रहा था ना, प्रभु मोहे बताए कि मैं इस दुनिया में कैसे जीऊं। वो यीशु मसीह, वो प्रभु बताएगा, वो चलाएगा ना। वो एक विश्वास तो हम लेके चले ना, और जब वो हमें लेकर के चलाएगा तो वही अनुभव होगा जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, जैसा कि पतरस को मिला पानी के ऊपर में चलने का अनुभव। अमेजिंग, amazing. That is the brilliance. That is the brilliance. And today I want to share. मैं इसी बात को आप सबके साथ रख करके जाना चाहूंगा कि हमारा प्रभु हमारे दुख में, दर्द में, तकलीफों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, विषमताओं में सबसे करीब रहता है, सबसे करीब रहता है। हमको ऐसा महसूस होगा कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये प्रियो याद रखें कि वह हमारे सबसे करीब रहता है, और हमें वह कुछ बातें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। जैसे सिस्टर मेरी की जिंदगी से हम लोग देख रहे थे, वो दुख का दर्द उनकी जिंदगी का आशीष का कारण बने, वैसे ही हमारी जिंदगियों में आशीषें प्रभु हमें देना चाहता है। हम उसको बस थामे रहे, वो हमें फिर अद्भुत अनुभवों से वो हमें लेकर के जाएगा। Thank you, Sajibaya, for those wonderful words. I think it's time for us to say goodbye. Singh Saab. Yeah, thank you so much, Bob, and thank you, Sister Mary. धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। और हम अपने सारे श्रोतागणों को धन्यवाद कहते हैं। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। बॉब्स हिंदी रेडियो में आपका हमेशा स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। सबको शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अनुज भाई, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हफ्ते फिर से मिलेंगे नए अनुभवों के साथ, और तब तक के लिए प्रभु के नाम पे आपको सौंपते हैं। आरजे निम्मी, सबको शुक्रिया और खुदा हाफिज। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। Thank you so much, and thank you, Robin, for helping us in the background. And to all our wonderful listeners out there, thank you so much for tuning in. We love you from the bottom of our hearts. Keep tuning in every Monday to listen to our Hindi broadcast. And please do share this with your friends and family, and let them also hear the love of Jesus. Well, it's time to say goodbye for now, along with RJ Nimmi, Anuj, and Singh Saab, and Bye-bye. Robin, and Sajibaya, and all of us out here. Shubh Ratri, good night. Goodbye, Bye. good night, and God